بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ بزم فکر اقبال راولپنڈی کی جانب سے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس آن لائن سیشن میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بزم فکر اقبال راولپنڈی کے صدر جناب پروفیسر قمر اقبال صاحب۔ میں آپ کو نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ میں بلا تعطل اب سیشن آپ کو دیتا ہوں، آپ اسپیکر، مائک آپ کو دیتا ہوں کہ آپ آج کا جو سیشن ہے فکر مطالعہ اقبال و اقبالیات کے بنیادی ماخذ، اس کا حصہ دوم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، نوجوان طلباء و طالبات اور اہل وطن، السلام علیکم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس لاک ڈاؤن کے دور میں ہم نے یہ علمی محفل سجا لی ہے، اور بہت سے شرکاء نہ صرف پاکستان سے بلکہ مقبوضہ جموں و کشمیر سے بھی اس میں شامل ہیں، اور علم کی شمع سے روشنی حاصل کرنے کے لیے تمام پروانے جو ہیں وہ جمع ہیں۔ تمام حضرات، خواتین و حضرات کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ ایسے حالات میں بھی وہ شوق رکھتے ہیں علم کا، اور اقبال سے محبت کرتے ہیں، اس کی فکر سے، اس کی سوچ سے، افکار سے محبت رکھتے ہیں اور اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اپنا قیمتی وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہیں۔ اللہ سب کو علم و ادب سے روشنی حاصل کرنے کی یوں ہی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور دنیا جس مشکل وقت سے گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس وبا سے جلد از جلد ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج لیکچر جو ہے اس کا پہلا حصہ پچھلے منگل کو ہم نے کیا تھا، فکر اقبال و اقبالیات کے بنیادی ماخذ، اور اس کا مطلب میں نے الحمدللہ بتا دیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اقبال کو پڑھنا ہے، اقبالیات کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ بنیادی کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں ہم ماخذ کہتے ہیں، یعنی جہاں سے کچھ اخذ کیا جاتا ہے، جہاں سے کچھ لیا جاتا ہے۔ تو پچھلی مرتبہ میں نے جو اہتمام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اقبال کے زمانے کو سمجھا جائے، اور اقبال کے زمانے کے مطابق علامہ اقبال کی شخصیت کا مطالعہ جو ہے وہ کن کتب کے ذریعے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک ہم نے اپنے اس لیکچر کو محدود رکھا تھا کہ اقبال کے زمانے کو سمجھ لیں، اور اقبال کے زمانے کے تناظر میں کیا اقبال نے خدمات انجام دی ہیں، تھوڑا سا اقبال کا ذہنی و فکری ارتقاء ان کے زمانے کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ صرف اس موضوع تک میں نے اپنے لیکچر کو محدود رکھا تھا، اور آپ کے سامنے جو کتابیں میں نے رکھی تھی جن کا ذکر کیا تھا انہیں میں ایک مرتبہ دہرانا چاہوں گا۔ بہت امپورٹنٹ کتاب جس کے بغیر اقبال کے طالب علم کہلوا نہیں سکتے، زندہ رود جاوید اقبال کی تھی۔ عبد المجید سالک کی ذکر اقبال، ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کی عروج اقبال اور اوج اقبال، اور حضرت طاہر فاروقی کی سیرت اقبال، جگن ناتھ آزاد جن کا بھارت سے تعلق تھا اور بہت بڑے اقبال شناس تھے، ان کی اقبال اور اس کا عہد، اور ڈاکٹر افضل حمید جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اقبال اور ان کا عہد ان کی کتاب تھی، اور 2 حصوں پر مشتمل ڈاکٹر سلطان محمود کی اقبال عہد بعہد۔ ان کتابوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے اقبال کے عہد کا، اقبال کے دور کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال کی شخصیت جو ہے
उसने क्या किरदार अदा किया है और किस तरह से डेवलपमेंट उनके जहन की हुई है और कैसे आप अपनी फिक्र को, अपनी सोच को लेकर आगे चलें। तो ये बुनियादी किताबें थी जो मैंने आपके सामने रखी थी। याद रखिएगा, इकबालियात जो है वो एक समंदर है, और अजीज अहमद बहुत बड़े इकबाल शनास गुजरे हैं। उनकी किताब है इकबाल नई तश्कील। उसके अंदर अजीज अहमद साहब ने यह फरमाया कि इकबाल की मिसाल एक गहरे समंदर की है जो जवाहरात से, मोतियों से भरा हुआ है। इसकी जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही हीरे जवाहरात और मोती हम चुन लेंगे, हासिल कर लेंगे। तो मैंने जो आगाज किया है तालिब इल्माना अंदाज में आपको मताले इकबालियात के तरीकों से वाकिफ करवाने के लिए, जाहिर है कि पिछली मरतबा 7-8 बुनियादी किताबें आपको बताई थी, और इसके बगैर हम इन किताबों के बगैर किसी सूरत में हम इकबालियात के और इकबाल की फिक्र के जीने तय नहीं कर सकते। मैंने ये दरख्वास्त भी की थी कि कागज़ पेंसिल अपने पास रखिएगा और उन किताबों को नोट भी आपने करना होता है, और इस मरतबा भी मैंने दोबारा वो बयान कर दी हैं किताबें, यकीनन आप अपने पास नोट कर लेंगे। तो आज इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि इकबाल की फिक्र को, आपके कलाम को, आपके जहनी इर्तिका को समझने के लिए अब अगले मरहले में हम दाखिल हो रहे हैं कि किन किताबों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, पिछली मरतबा मैंने आपको इस हवाले से किताबें बताई थी कि जिस भी शख्सियत का हम मताला करते हैं, सबसे पहले उसके ज़माने का मताला किया जाता है। उस हिसाब से मैंने आपको कुछ किताबें बताई थी, लेकिन साथ ही वो सवाने की किताबें भी थी, यानी इकबाल के हालात ज़िंदगी भी उनमें आ गए थे। लेकिन ख़ास तौर पर मैंने सिलेक्शन इसलिए उन किताबों की थी कि इनमें इकबाल के ज़माने पर बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाली गई। अब एक कदम हम और आगे बढ़ रहे हैं कि ख़ास तौर पर इकबाल की सवानी किताबें जो हैं, यानी आपके हालात ज़िंदगी जो किताबें बहुत अच्छे तरीके से बयान करती हैं, और साथ साथ थोड़ा बहुत उनकी फिक्र के हवाले से भी बात चलती है, मामूली, लेकिन बुनियादी तौर पर आज के लेक्चर में भी मैं इकबाल के हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल किताबें जो है वो आपके सामने रखूँ। नौजवानों, ये बहुत ही अहम बात है कि इकबाल की फिक्र को जब हमने समझना है तो पहले उसके ज़माने को अच्छी तरह से समझना होगा। पिछले लेक्चर में मैंने किताबें आपके सामने रख दी थी, और उसके बाद आपके करीबी लोग जो हैं उनकी लिखी हुई आपके हवाले से सवानी किताबें जो हैं वो देखना हमें बहुत ज़रूरी है, और आज उसके हवाले से मैं बात करूँगा। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इकबाल की फ़िक्र को सही तौर पर समझने के लिए आपके हालात ज़िंदगी से अच्छी तरह से वाकिफ़ होना हमें इंतहाई ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ आपके लिए कि जब किसी शख्सियत का तहकीकी नुक्ते निगाह से हम मताला करते हैं, उसकी सवाने उम्री का, उनके हालात ज़िंदगी का, तो तरतीब ये होती है कि जो आपके इंतहाई करीबी लोग हैं, अजीज रिश्तेदार और दोस्त, जिन्होंने आपको देखा, आपके करीब रहे, आपसे मिलते जुलते रहे, उनकी किताबों को पहले नंबर पर रखा जाता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। और उसके बाद आपकी वफात के बाद जिन लोगों ने या करीब जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं और मुस्तनद माने जाते हैं, उन लोगों की किताबें आएंगी। कुछ मुस्तकिल किताबें होती हैं जो लिखी ही सवाने के तौर पर जाती हैं, सवाने उम्री के तौर पर लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ किताबें होती हैं जिनमें ज़िमनी तौर पर आपके सवाने आ जाते हैं। ये आपने अपने जहन में बात रखनी है। तो अब मैं कुछ किताबें आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है कि आप नोट करेंगे इनको, और इंशाल्लाह हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नेट पर भी बहुत सी किताबें आजकल दस्तयाब हैं, लेकिन इनसे वाकिफ़ होना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले किताब जो इकबालियात की मशहूर किताब है 2 हिस्सों में, ये आपने याद रखना है। इकबालियात को पढ़ने का जो दावा करता है और ये किताब उसने नहीं पढ़ी, या उसकी लाइब्रेरी में नहीं है, या इससे वो वाकिफ़ नहीं है, तो समझ लें कि
اقبالیات کو پڑھنے کا دعویٰ جو ہے وہ خام رہے گا۔ دو کتابیں، اقبال کے ذہنی اور فکری ارتقاء کو سمجھنے کی اب ہم بات کر رہے ہیں ایک قدم آگے نکل کر۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار بہت بڑے پاکستان کے ماہر اقبالیات تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ابھی کچھ سال ہوئے کہ ان کا انتقال ہوا، بس میں اقبال کے معتمد بھی رہے۔ ان کی دو کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اقبال کے ذہنی ارتقاء کو سمجھنے کے لیے میری نظر میں ان سے اچھی کتابیں کوئی نہیں ہیں۔ ایک کتاب ہے اقبال کا ذہنی و فکری ارتقاء، یہ دیکھیے گا، اقبال کا ذہنی و فکری ارتقاء، ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، لاہور سے چھپی ہے یہ، اور بزم اقبال لاہور نے چھاپی ہے۔ انتہائی اہم کتاب۔ اگر اس کتاب کو توجہ کے ساتھ پڑھ لیں تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم، مرحلہ وار اقبال کا سارا ذہنی ارتقاء سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس میں سن وار یعنی سن کے لحاظ سے سن لکھے گئے ہیں، اور پھر اقبال کی اپنی تحریروں سے، خطوط سے، مقالات سے، شاعری سے اقبال کا ذہنی ارتقاء دکھایا بہت ہی اچھے طریقے سے۔ یہ کتاب ضرور ہمارے پاس ہونی چاہیے، اقبال کا ذہنی و فکری ارتقاء۔ سرگزشت اقبال بھی اس کا بریکٹ میں نام لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کی کتاب ہے، بزم اقبال لاہور سے چھپی ہے، بزم اقبال لاہور، یہ ضرور ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ دوسری کتاب بھی ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار ہی کی ہے اور انتہائی اہم کتاب ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے، اقبال ایک مطالعہ، ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، اور یہ اقبال اکادمی لاہور سے چھپی ہے۔ اقبال اکادمی لاہور، اقبال ایک مطالعہ، ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار۔ اس میں بہت ہی پائے کے مضامین ہیں، دو تین۔ اقبال کا سفر ہندی قومیت سے ملی قومیت تک، اور اقبال کی زندگی کا ایک اہم سال 1907، اور اسی طریقے سے اقبال اور اورینٹل کالج، یہ اس کا ایک مضمون ہے۔ تو اقبال کے ذہنی ارتقاء کو سمجھنے میں بہت اچھی کتاب ہے۔ وہ کہ متفرق مضامین ہیں اس میں، لیکن دو تین بہت ہی اعلیٰ مضمون ہیں، صرف انہیں پڑھ لیں تو اقبال کا ذہنی ارتقاء میرے خیال میں پورے کا پورا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک مثال میں چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، ان کتابوں کے پڑھنے سے ہمیں کس طرح سے شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یورپ جانے سے پہلے اقبال کے ترانے کا تھا ترانے ہندی، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ 1905 میں اقبال یورپ گئے ہیں، اس سے پہلے اقبال کے ترانے کا عنوان ہے ترانے ہندی، اور اقبال کا کہنا ہے ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ لیکن 3 سالہ قیام یورپ نے آپ کے قلب و ذہن پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ یہ ہے کسی شخصیت کا، مفکر کا، شاعر کا ذہنی ارتقاء کا مطالعہ کرنا۔ یورپ میں جا کے آپ نے جغرافیائی وطنیت جو ہے اس کے مضر اثرات دیکھے، اور یہ بھانپ لیا کہ انگریز قوم جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کے لیے جغرافیائی وطنیت کا راگ الاپ رہی ہے، اور مظلوم ممالک جو ہیں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ممالک جو ہیں، وہاں غلامی کی زنجیروں کو مضبوط کرنے کے لیے جغرافیائی وطنیت جو ہے ان پر ٹھونسنا چاہتی۔ لہٰذا آپ اس خطرے سے جب آگاہ ہو گئے تو اب دیکھیے کہ 1908 میں ہندوستان لوٹنے کے بعد جو ہندوستان سے اقبال گیا تھا، اس کے ترانے کا عنوان تھا ترانے ہندی، اور اس کا نعرہ تھا ہندی ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ لیکن 1908 میں جو اقبال لوٹا ہے، اس کے ترانے کا عنوان اب ترانے ملی بن چکا ہے، اور اب اس کا نعرہ بن چکا ہے
मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब देखिए ये मरहलावार स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इकबाल आगे बढ़े हैं और उनके जहन में तब्दीलियां रूनुमा हुई। तो ये इकबाल का कलाम पढ़ने से पहले, इकबाल के खुतबात पढ़ने से पहले, इकबाल की उर्दू और फारसी शायरी का मताला शुरू करने से पहले हमने इन किताबों को पढ़ना होता है, ताकि हमें शायर का और मुफक्किर का ज़हनी इर्तिका सही तौर पर मालूम हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। ये दो किताबें इकबाल के ज़हनी इर्तिका को समझने में बहुत ही अहम हैं, ज़रूरी और लाजमी किताबें, समझ लीजिए इन्हें। अब इकबाल के सवाने को हम आगे बढ़ाते हैं कि आपके हालात ज़िंदगी, आपके करीबी लोगों से शुरू करेंगे हम, और फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। पिछली मरतबा मैंने आपके बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब से आपको वाकिफ करवा दिया था, जिंदा रूद। लेकिन इकबाल, जावेद इकबाल बहुत छोटे थे इकबाल की जिंदगी में। जब इकबाल फौत हुए हैं तो 11-12 साल के, 13 साल के थे आप। और बाद में आपने किताब जो लिखी है, जाहिर है कि वो दूसरे माखज़ आपने इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादातर दूसरे लोगों को इतने बच्चे की तो याददाश्त नहीं होती। लिहाजा अब जो किताबें आपके सामने आ रही हैं वो इस लिहाज से बहुत अहम हैं कि वो आपके करीबी साथियों की, जो कि आपके एज ग्रुप में शामिल थे या फिर नौजवान थे उस वक्त, उनकी किताबें मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ। सैयद फ़कीर सैयद नजमुद्दीन इकबाल के बहुत करीबी दोस्त थे। इकबाल के पास बहुत उठना बैठना था इनका। उनके बेटे ने फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन, फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन, ये नाम आपने याद रखना है। इनके वालिद जो हैं वो इकबाल के बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत इनके पास आना जाना था। और सैयद फ़कीर सैयद नजमुद्दीन उनका नाम था। उनके बेटे फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन, ये उस वक्त छोटे थे, नौजवान थे। इनका भी ज़ाहिर अपने वालिद के साथ इल्म अदब से ताल्लुक़ था। इकबाल के पास आना जाना और उठना बैठना था। इन्होंने खुद भी इकबाल को करीब से देखा और वालिद ने बहुत सी चीज़ें, बहुत से वाक़यात इन्हें लिखवाए, कलम बंद करवाए और सुनाए, और आपने वो लिख लिए। लिहाजा आपने इन याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब लिखी। 1950 में ये किताब पहली मरतबा छपी थी और छपते ही मकबूल हो गई थी और बेस्ट सेलर बुक बन गई थी उस वक्त। और इकबालियात की मशहूर तरीन किताब है रोज़गार फ़कीर, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2 जिल्दें हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दो। ये रोज़गार फ़कीर किताब का नाम है, 2 हिस्सों पर है। 1950 में पहली मरतबा छपी थी और आतिश शाह एक पब्लिशर थे लाहौर में, उन्होंने इस किताब को छापा था 1950 में। और 1964 इसकी दूसरी जिल्द आ गई थी, वो भी आतिफ शाह पब्लिशर ने लाहौर से छापी थी। आजकल ये किताब मकतबा तामीर इंसानियत लाहौर से छप रही। मकतबा तामीर इंसानियत लाहौर, जिंदा रोज़गार फ़कीर हिस्सा अव्वल और दोम। याद रखिएगा कि फ़िक्र इकबाल को समझने के लिए और इकबाल की हयात को समझने के लिए, फ़िक्र इकबाल को समझने के लिए इकबाल के सवाने को समझना ज़रूरी है, और इकबाल के सवाने को समझने के लिए रोज़गार फ़कीर किताब जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, ये बहुत ही बुनियादी किताबों में आती है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, रोज़गार फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन, फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन। और आजकल मकतबा तामीर इंसानियत लाहौर से छप, बहुत अहम किताब। सैयद नज़ीर न्याज़ी नाम आपने सुना होगा। इकबाल के खुतबात जो हैं उनके सबसे पहले मुतरजम जो हैं वो सैयद नज़ीर न्याज़ी हैं। बहुत बड़े फ़लसफ़ी और अलसी पर, उर्दू पर, शायरी पर दस्तरस रखने वाले इकबाल के बहुत करीबी साथियों में थे। इकबाल की आखिरी ज़िंदगी में तो बिल्कुल उनके करीब और उनके पास रहे। जब इकबाल आखिर में बीमार थे तो सैयद नज़ीर न्याज़ी उनके लिए दवाइयाँ लाने का, हकीम साहब के पास जाने का, डॉक्टर को बुलवाने का
एहतमाम करते थे और तकरीबन रात दिन उनके पास रहते थे। और आपने इकबाल ही के कहने पर खुतबात का तर्जमा भी शुरू किया था, और आपके एक दो खुतबात को इकबाल ने देखा भी था, लेकिन आपकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की। तो आपकी वफात के बाद आपने खुतबात का तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था, जो बाद में छपा। ये हमारा मौजू नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन स्वानी कुतब के सिलसिले में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इकबाल के जो करीबी लोग होंगे उनकी किताबें आपके हालात ज़िंदगी के हवाले से ज़्यादा मुस्तनद करार पाएंगी। तो अगली शख्सियत है सैयद नज़ीर न्याजी। इनकी दो किताबें मेरे पेश नज़र हैं जो आपके पास होनी चाहिए। एक तो ये देखिए, इकबाल के हुजूर, नशिस्तें और गुफ्तगुएं। इसी से आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि सैयद नज़ीर न्यासी ने अल्लामा इकबाल से जो गुफ्तगुएं की हैं, जो नशिस्तें उनके साथ होती रही हैं, वो नोट्स ले लिया करते थे और बाद में उन्होंने वो तमाम इस किताब में छाप दी हैं। और इकबाल अकादमी लाहौर से ये किताब छपती है। इकबाल के हुजूर सैयद नज़ीर न्यासी की इकबालियात की अहम तरीन किताबों में शुमार होती है। बस में इकबाल अकादमी पाकिस्तान लाहौर से छपी हुई है और यकीनन आपने नोट कर ली होगी, अहम किताब। 1971 1971 में ये किताब छपी थी। सैयद नज़ीर न्यासी ही की दूसरी किताब सवाने पर मुश्तमिल है, इकबाल के हालात ज़िंदगी पर। इकबाल की मबसूत सवाने लिखा था। इससे पहले जो किताब मैंने आपको दिखाई है वो तो जाहिर है कि नशिस्तें और गुफ्तगुएं हैं, जिसके नोट्स आप ले लिया करते थे। लेकिन ये बाकायदा आपने सवाने उमरी लिखने का आगाज़ किया था, लेकिन मुकम्मल नहीं हो सकी। काफ़ी हद तक फिर भी इसमें काफ़ी मालूमात हमें मिल जाती हैं। ये देखिएगा, दानाए राज, दानाए राज किताब का नाम है, सैयद नज़ीर न्याजी। और इकबाल अकादमी लाहौर से ये भी छपी थी 1979 में, 1979 में ये किताब छपी थी, दानाए राज। सैयद नज़ीर न्याजी की किताब है, इकबाल की सवाने पर एक मुस्तनद और अहम किताब। सवाने हयात हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा इकबाल, दानाए राज के नीचे ये भी लिखा हुआ है, यकीनन आपने नोट कर ली हो। अगली दो किताबें बहुत अहम फिर इस लिहाज से कि ये इकबाल के ख़ानदान के एक फ़र्द ने लिखी हुई किताब। एक ही नाम है लेकिन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसलिए मैंने दो किताबें कहा। इकबाल के भांजे हैं, अभी कुछ अर्सा पहले इनकी वफ़ात हुई, खालिद नज़ीर सूफ़ी, ये नाम नोट कर लीजिएगा। खालिद नज़ीर सूफ़ी इकबाल के ख़ानदान के फ़र्द हैं, ये याद रखिए। अब चूँकि वक्त कम, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। नाम आपके सामने आ जाए तो तफसीली तारुफ आप सबको आसानी से मिल सकते हैं। इनकी किताब है इकबाल दरूने खाना। इकबाल दरूने खाना, क्या मतलब बना इसका? इकबाल अपने घर में, इकबाल अपने घर में, यानी चूँकि ये घर के फ़र्द हैं, खालिद नज़ीर सूफ़ी और इकबाल दरूने खाना, ये किताब हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम भी ये मेरे सामने है, ये देख लीजिए। और आजकल ये इकबाल अकादमी लाहौर से दोनों हिस्से छप रहे हैं। इकबाल अकादमी लाहौर से खालिद नज़ीर सूफ़ी तो इकबाल के ख़ानदान के फ़र्द हैं, तो इकबाल की हमशीरा, इकबाल की बहनों के हवाले से, इकबाल की बेमात के हवाले से, इकबाल के और अजीज़ रिश्तेदारों के बयानात जो हैं वो आपने लिए। कुछ जो वाक़यात देखे हैं वो कलमबंद किए इनमें, और बहुत करीबी लोगों की जो मुस्तनद बातें हैं वो इन दोनों किताबों में लिखी गई हैं। पाकिस्तान लाहौर इकबाल अकादमी से ये छपी हैं। इकबाल दरूने खाना हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम खालिद नज़ीर सूफ़ी की किताबें हैं, और इकबाल खाने को समझने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं और बुनियादी माखज़ की हैसियत रखती हैं।
ये याद रखिएगा कि मैं जो बुनियादी माखज़ का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मताला इकबाल और इकबालियात के बुनियादी माखज़ हैं, वरना ये बात जो तहकीक के तालिब इल्म बात को सुन रहे हैं उन्हें मालूम है कि इकबाल की शख्सियत अगर तहकीक करनी है हमने, तो उस वक्त जो बुनियादी माखज़ कहलवाएंगे वो इकबाल की अपनी तहरीरें जो हैं वो बुनियादी माखज़ कहलवाएंगी। लेकिन ये मताले इकबाल और इकबालियात के बुनियादी माखज़ के इकबालियात को पढ़ने के लिए, इकबाल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जिन किताबों की हमें ज़रूरत है उन्हें मैं बुनियादी माखज़ कह रहा हूँ। ये फ़र्क आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए। अब ये जो किताबें मैंने आपके सामने रखी हैं ये बहुत ही करीबी आपके जो लोग थे उनकी किताबें। एक और किताब आपके सामने रख दूं मैं, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला चुगताई। ये आपने अपने जहन में रखना है। एक हमारे यहाँ बहुत ही बड़े आलिम और उर्दू की मुस्तनद शख्सियत डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला थे, ये वो नहीं है। ये इकबाल के करीबी दोस्तों में इनका शुमार होता था और इकबाल के पास बहुत उठना बैठना था, इकबाल से बहुत बेतकल्लुफी थी। ये वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला चुगताई। इनकी किताब है रवायात इकबाल। नाम ही से आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि इकबाल के हवाले में इकबाल के हवाले से उनके करीबी दोस्तों, अजीज रिश्तेदारों और आपके मुलाजिम जो थे उनके आपने इंटरव्यू किए, उनकी उनसे गुफ्तगू की, उनकी बातें सुनी और इस किताब में आपने उन सबको जमा कर दिया। और ये भी एक तरह से इब्तदाई किताबों में यानी इकबाल के सवाने के बुनियादी माखज़ में ये किताब आएगी, रवायात इकबाल, मोहम्मद अब्दुल्ला चुगताई की किताब। और इसी तरह से मोहम्मद अब्दुल्ला चुगताई की एक और किताब है, वो मैं निकाल नहीं सका, दिखा नहीं सकूंगा आप, लेकिन नाम है उसका इकबाल की सोहबत में। इकबाल की सोहबत में ये भी मोहम्मद अब्दुल्ला चुगताई की किताब है और इकबाल अकादमी लाहौर से 1977 में 1977 में छपी थी। दोबारा अगर नोट कर रहे हैं आप लोग, आप में से कुछ लोग, तो दोबारा मैं बताता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला चुगताई की एक किताब मैंने आपको दिखाई, रवायात इकबाल, और दूसरी किताब है इकबाल की सोहबत में। इसके अंदर भी नाम जाहिर हो रहा है कि इकबाल की सोहबत में जो लोग रहे हैं उनके बयान करदा इकबाल के हालात और वाक़यात आपने इसमें लिखे हैं और जो ये वही लोग हैं जो आपके ज़माने में आपके बहुत करीब थे, लिहाजा ये भी अथेंटिक और मुस्तनद माखज़ करार पाएगा इकबाल के सवाने के ज़िमन। तो ये किताबें जो मैंने आपके सामने अभी रखी हैं, आपने याद रखना है कि फर्स्ट हैंड नॉलेज इसे आप कह सकते हैं, यानी इकबाल के अजीज रिश्तेदार और आपके दोस्त जो आपके पास रहे हैं उनके अपने वाक़यात, उनके अपने बयानात, और फिर जो लोग और आप करीब रहे हैं उनके वाक़यात जो हैं वो लिए गए हैं और लिखे गए हैं। लिहाजा इकबाल को अपनी हयात में जिन लोगों ने देखा है ये किताबें उनके बयानात पर मुश्तमिल हैं और यकीनन इनकी अहमियत का अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि इकबाल के सवाने के हवाले से ये किताबें, पिछली मरतबा जो किताबें आपके सामने मैंने रखी थी वो चूँकि इकबाल के ज़माने को समझना था, इकबाल के ज़माने को समझने के लिए वो अच्छी किताबें थीं, इसलिए मैंने वो आपके सामने रखी थी। वरना इकबाल के सवाने को समझने के लिए ज़्यादा मुस्तनद और बुनियादी ये किताबें हैं जिनका आज मैंने अब तक जिक्र आपके सामने किया है। याद रखिएगा कि डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब जिंदा रूद जो है वो इकबाल के ज़माने को समझने के लिए, इकबाल के सवाने को कॉम्पैक्ट अंदाज में एक ही जगह समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसका सारे का सारा मवाद ज़्यादातर इन किताबों से लिया गया है जो अभी मैंने आपके सामने रखी। इस अहमियत को आपने समझना है। ज़्यादा तफसील से मैं इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि अब ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन अक्सर इशारा जो मैंने कर दिया है उससे इन किताबों की अहमियत आपके सामने आ गई होगी। तो ये तो इकबाल को अपनी हयात में देखने वाले लोग थे और उनकी किताबें थी, इन्हें बहुत अहम हैं, आप सबके पास होनी चाहिए।
अब मैं कुछ किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, उन लोगों की किताबें जिन्होंने अपनी आंखों से अल्लामा इकबाल को देखा तो नहीं, लेकिन इकबालियात में उनका बड़ा नाम है और मारीन इकबालियात कहलवाते हैं और इकबाल शनास कहलवाते हैं। नाम आपके सामने आएंगे तो आप अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने इकबाल के सवाहने के हवाले से जो किताबें लिखी हैं और मुस्तनद लोगों के मज़ामीन अपनी किताबों में जमा कर दिए हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अल्लामा इकबाल को देखा है, आपके करीब उठे बैठे हैं और आप हालात वाक़या बयान किए हैं। तो अब उन किताबों का तज़किरा मैं करता हूँ जो बहुत अहम हैं। यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त इकबाल शनास थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। एक हादसे में फौत हो गए थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। डॉक्टर साबिर कुलूरवी, डॉक्टर साबिर कुलूरवी जो हैं, ये इनका नाम जिंदा रहेगा इकबालियात में कि कुलियात बाकियात इकबाल, जिसका जिक्र आगे कहीं चल के हम करेंगे इंशाल्लाह, जब इकबाल के कलाम की और इकबाल के कलाम को समझने की तरफ आएंगे, किताबों का जिक्र उसमें इसका जिक्र होगा। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा नाम है, आपका PhD का मकाला था इकबाल के बाकियात, जो यानी आप कलाम के जो बाकियात हैं उन पर आपने तहकीक की थी और इकबाल अकादमी लाहौर से ये किताब कुलियात बाकियात इकबाल के नाम से छप चुकी है। ये ज़िमनी तौर पर तस्का आ गया। मैं किताब का जिक्र करना चाहता हूँ कि आपने इकबाल के सवाहने के हवाले से जो किताब लिखी है, वो किताब है इकबाल के हमनशीन। इकबाल के हमनशीन यानी इकबाल के साथ जो लोग उठे बैठे हैं, आपके जो दोस्त थे, उनके बयानात और उनके मज़ामीन आपने इस किताब में जमा कर दिए। इकबाल के मज़ामीन 1985 में ये किताब लाहौर से छपी थी, इसको आपने अपने पास नोट रखा। फिर एक किताब आपके सामने मैं रखता हूँ, डॉक्टर जाफर बलोच की किताब। डॉक्टर जाफर बलोच, और बलूच भी इसे बोलते हैं हम यहाँ पे, लेकिन आम तलफ्फुज़ों पे बलोच ही चलता है, इसलिए मैंने वो बोल दिया। डॉक्टर जाफर बलूच, इनकी किताब है मजालिस इकबाल, और नाम से जाहिर हो रहा है ये कि इकबाल की मजालिस में जो लोग बैठे हैं उनके बयानात और उनके मज़ामीन इस किताब में आ गए हैं। गो के और किताबों से लिए गए हैं, लेकिन एक जगह यकजा हो गए, ये अच्छा काम है। और ये दारुत तज़कीर दारुत तज़कीर अदारा है किताबों का एक लाहौर में, उन्होंने लाहौर से ये छापी है, मजालिस इकबाल के नाम से। डॉक्टर जाफर बलोच की किताब है। एक और अहम किताब ये देखिए, इकबाल के हम सफ़ीर, यानी इकबाल के साथी, इकबाल के साथ उठने बैठने वाले, इकबाल की मजालिस में आने वाले, इकबाल के हम सफ़ीर। ये भी फर्स्ट हैंड नॉलेज आप इस लिहाज कह सकते हैं कि इनमें जो मज़मून शामिल हैं उन तमाम लोगों ने इकबाल को करीब से देखा है और इकबाल की मुलाकातों के हालात उन्होंने जो बयान किए हैं अपने मज़ामीन में, वो MS नाज, अच्छे मुहक्किक थे ये भी, MS नाज, इनकी ये किताब है। शेख गुलाम अली एंड सन्स, लाहौर से ये छपी हुई है, इकबाल के हम सफ़ीर। इसे भी आपने नोट रखना है आपके अपने पास, क्योंकि इस लिहाज से ये उम्दा किताब है कि इकबाल को जिन लोगों ने खुद करीब से देखा है उनके बयानात, उनके मज़ामीन पर यह किताब मुश्तमिल। ये 3 किताबों का एक सेट मैंने आपके सामने रखा है। ये किताब शेख गुलाम अली एंड सन्स से छपी है आखिरी। कोई साहब पूछ रहे हैं तो उनके लिए मैंने ये बात बता दी। अब चंद किताबें और जो इकबाल की जिंदगी के बहुत से गोशे हमारे सामने लेकर आती है। एक किताब का नाम ही देखिए ज़रा, और इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोगों ने, महक्कीन ने, माहिरीन इकबालियात ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं और इकबाल की ज़िंदगी पर कैसी कैसी किताबें और इकबाल की ज़िंदगी के कैसे कैसे गोशे सामने आए। किताब है मोहम्मद हमजा फारूक की,
दानिशगाह पंजाब यानी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ये किताब छपी 1988 में। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ये किताब छपी। मोहम्मद हमजा फारूकी की किताब है और नाम है इसका हयात इकबाल के चंद मख्फी गोशे। हयात इकबाल के चंद मख्फी गोशे यानी आम किताबों में इकबाल की के सवाने की आम किताबें जो हैं उनमें जिन गोशों पर रोशनी नहीं डाली गई, इस किताब में वो भी हमें मिल जाते हैं। असल में इनकलाब अखबार था बहुत मशहूर हिंदुस्तान का, उसके फाइल इन्होंने हासिल किए और बड़ी अरक्रेजी के साथ उसमें से इकबाल से मुतल्लिक जो खबरें थी, जो बयानात थे इकबाल के, जो खबरें थीं और जो चीज़ें उसमें इकबाल के मुतल्लिक शामिल थी उस दौर में, वो सारी इकट्ठी कर दी इस किताब में। अच्छी खासी ज़ख़ीम किताब है हयात इकबाल के चंद मख्फी गोशे। फिर एक किताब है इन्हीं की, मोहम्मद हमजा फारूकी की, और अहम किताब है इकबालियात की। ये आप सबके जहन में होनी चाहिए, आपके पास नोट होनी चाहिए और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हासिल भी आप कर लेंगे। हो सकता है बहुत से लोगों के पास मौजूद भी हों। तो मोहम्मद हमजा फारूकी की किताब है सफ़रनामा इकबाल। सफ़रनामा इकबाल, तो देख ले नाम से अंदाजा हो रहा है कि इकबाल ने अपनी जिंदगी में जो सफ़र किए हैं, अहम सफ़र जो किए हैं, बड़ी अरक्रेजी के साथ, बड़ी मेहनत से मोहम्मद हमजा फारूकी ने उनका हाल अपनी इस किताब में बड़े बुनियादी और अथेंटिक माखज़ के ज़रिए जमा कर दिया है। किताब मैंने आपको बताई सफ़रनामा इकबाल, मोहम्मद हमजा फारूकी की किताब है और ये 1989 में छपी थी लाहौर से। एक और किताब देखी और अब ज़रा आपने वुसअत देखनी है इकबालियात की कि इकबाल के सवाहने जो हमारे सामने आ रहे हैं, अब उसके मुख्तलिफ गोशे और मुख्तलिफ पहलू जो हैं, एक एक पहलू पर, एक एक गोशे पर मुकम्मल किताब मौजूद। ये देखिए ज़रा, इकबाल और गुजरात। हमारी इस मजलिस में जम्मू और कश्मीर के अहबाब भी शामिल हैं। उनके लिए मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये पाकिस्तानी गुजरात जो है, रावलपिंडी से लाहौर जाते हुए रास्ते में जो एक शहर आता है, बड़ा मशहूर शहर है पाकिस्तान का, गुजरात, उसके हवाले से है। इकबाल की पहली बीवी का ताल्लुक यहाँ से था। तो पूरी ये किताब डॉक्टर मुनीर सलैच, वैसे ये मेडिकल डॉक्टर हैं और बहुत बड़े पाकिस्तान के नफ्सियात के माहिर हैं, माहिर नफ्सियात हैं और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाते हैं और बहुत ही लायक फाइक इंसान हैं। इकबालियात इनका शौक़ और दिलचस्पी है और इकबालियात पर ये इनकी बेहतरीन किताब है, इकबाल और गुजरात। ये भी इकबाल के सवाहने पर एक ख़ास नुक्ते निगाह से, ख़ास पहलू पर रोशनी डालती है। ज़रूर हमारे पास ये होनी चाहिए। और स्लेच पब्लिकेशंस गुजरात से ही ये किताब छपी है, इकबाल और गुजरात। डॉक्टर साहब का वैसे ज़्यादा जो तारुफ है वो वफ़ियात के हवाले से है और आप ये समझ लें कि उर्दू अदब में एक नया शोबा, उसकी दाग मिल डालने में डॉक्टर साहब का अहम किरदार है कि जो मशाहिर फौत हो चुके हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुख्तलिफ इलाकों के कब्रिस्तानों में जो दफन हैं, डॉक्टर साहब मालूम नहीं कैसे वक्त निकाल लेते हैं इतना कि कब्रिस्तानों में तशरीफ़ ले जाते हैं और बड़ी दिक्कत नज़र से वो कत्मे पढ़ते हैं और फिर उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं और बेशुमार वफ़ियात पर इनकी किताबें आ चुकी हैं। उन्हें भी सर्च करना चाहिए, इन किताबों को भी देखना चाहिए, बहुत पाए की किताबें हैं। तो इकबाल और गुजरात डॉक्टर मोहम्मद मुनीर अहमद सलैच की किताब है, गुजरात से छपी है सलैच पब्लिकेशंस के ज़ेरे एहतमाम और 2013 में ये किताब छपी थी, 2013। एक और किताब देखिए ज़रा, इकबाल और गुजरात मैंने किताब आपको दिखाई। अब इस किताब से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे जो अब मैं आपको दिखाने लगा। देखिए ज़रा, इकबाल और गुजरावाला, देख रहे हैं आप?
اقبالیات میں کتنے بڑے بڑے کام ہو چکے ہیں۔ اقبال اور گجرانوالہ، یہ گجرانوالہ جو ہے یہ پاکستان میں گجرات کے بعد لاہور سے پہلے ایک شہر ہے۔ اس کتاب میں اقبال کا اس شہر سے تعلق جو ہے، اس پہ روشنی نہیں ڈالوں گا کیونکہ کچھ فائدہ بھی ہو نا یہ آج کے لیکچر کا۔ آپ اس کتاب کو تلاش کریں، پڑھیں اور خود دیکھیں کہ اقبال کا گجرانوالے سے کیا تعلق تھا۔ اس فقیر کا ایک مقالہ بھی اس میں شامل ہے اقبال اور گجرانوالے کے حوالے سے۔ یہ کتاب ہے اقبال اور گجرانوالہ، اور اس کے مصنف کا نام آپ نوٹ کر سکتے ہیں، صاحبزادہ شبیر احمد کمال عباسی۔ صاحبزادہ شبیر احمد کمال عباسی کی کتاب ہے، اور عباسی پبلیکیشنز گجرانوالہ سے یہ کتاب چھپی ہے، اقبال اور گجرانوالہ۔ ایک کتاب اور دیکھیے ذرا، اقبال اور بھوپال۔ اقبال اور بھوپال بہت مشہور محقق، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے اردو کے ادیب صاحبہ لکھنوی، ان کی یہ کتاب ہے، اور اقبال اکادمی لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ بھوپال سے، ریاست بھوپال سے اقبال کا بڑا تعلق رہا ہے اور بہت سے معاملات رہے ہیں۔ اس پر ایک بڑی عمدہ اور بڑی زبردست تحقیقی کتاب ہے اقبال اور بھوپال۔ اقبال کے ذہنی و فکری ارتقاء کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ اقبال اور بھوپال، صاحبہ لکھنوی، اقبال اکادمی لاہور سے یہ کتاب چھپی۔ ایک کتاب اور دیکھیے گا، اب میں تھوڑا سا جلدی بات کروں گا تاکہ سوالات کے لیے جا سکیں۔ انجمن حمایت اسلام بہت ہی اہم انجمن تھی، جس نے تحریک پاکستان میں بھی اہم کردار ادا کیا، مسلمانوں کو بیدار کرنے میں، اسلام کی پاسبانی کرنے میں، اور خاص طور پر یتیم بچوں کی پرورش کرنے میں تحریک پاکستان کے دوران میں اور اب بھی، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا تھا انجمن حمایت اسلام نے۔ اقبال اس کے صدر بھی رہے، اس کے رکن تھے، مختلف عہدوں پر فائز رہے، اور اقبال نے مشہور کتابیں جو مشہور نظمیں جو ہیں، طویل نظمیں، شکوہ، جواب شکوہ، خضر رات، طلوع اسلام وغیرہ، وہ اسی انجمن کے پلیٹ فارم سے لاہور میں پڑھی تھیں۔ تو یہ انتہائی دلچسپ اور زبردست کتاب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب کہ اقبال کے سوانح کے حوالے سے کتنی باریکی میں جا کر ایک ایک پہلو پر پوری کتاب موجود ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے، اقبال اور انجمن حمایت اسلام، انجمن حمایت اسلام لاہور سے 1976 میں 1976 میں یہ کتاب چھپی تھی۔ نہایت اہم کتاب ہے، آپ سب کے پاس سے موجود ہونی چاہیے، اور محمد حنیف شاہد، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بزم اقبال کے یہ بھی معتمد رہے ہیں، اور بہت بڑے پاکستان کے محقق تھے، بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہوئے ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے اقبال اور حمایت اسلام، اور لاہور سے حمایت اسلام کے کتب خانے سے ہی یہ کتاب چھپی تھی، سن میں نے آپ کو بتایا 1976 میں۔ اب دو اہم کتابیں بالکل ذرا چوک و چوبند ہو جائیں، کیونکہ یہ کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں، حاصل کرنی ہیں، اور بہت سے آپ کو اقبال کی حیات کے گوشے بھی آپ کے سامنے روشن ہو جائیں گے، اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اقبال کی شخصیت کا کیا کمال ہے کہ لوگوں نے آپ کی حیات کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس پر بہت باریکی میں جا کر تحقیق نہ کی ہو۔ اور یورپ کے اندر جو آپ کا 3 سالہ قیام رہا، اس کے حوالے سے وہاں پر ایک صاحب نے تحقیق کی، اور آپ جی کا تعلق جن یونیورسٹیوں سے رہا، جن اساتذہ سے آپ کا تعلق رہا، ان اساتذہ کی آگے جو اولاد تھی، ان کے جو رشتہ دار تھے، ان سے ملاقاتیں کیں، ان کے پاس جو دستاویزات موجود تھیں وہ حاصل کیں، یونیورسٹیوں کے کتب خانے جو ہیں انہیں دیکھا، ریکارڈ وہاں پہ جو تھے انہیں حاصل کیا بڑی مشکل سے، اور اقبال کے 6 سالہ قیام جو ہے یورپ کا، اس کے تمام گوشے تقریباً ہمارے سامنے بہت باریک بینی سے لے آئے، اور بہت سی غلط فہمیوں کا بھی خاتمہ کیا، اور
बेशुमार नई बातें भी हमारे सामने आई, और ज़बरदस्त किताबें हैं आपके सामने मैं रखता हूँ। अहम किताबें हैं, ज़रूर हमें इनका मुताला करना चाहिए। डॉक्टर सईद अख्तर दुरानी, डॉक्टर सईद अख्तर दुरानी की किताबें हैं। ये पहली किताब है इकबाल यूरोप में। ज़बरदस्त तहकीकी किताब, लुत्फ़ और मज़ा आ जाता है पढ़ के कि कितनी बारीक बीनी से तहकीक की गई है। यहाँ तक कि आपके PhD का जो मकाला था, उस ज़मन में जो दरख्वास्त थी आपकी, उस दरख्वास्त पर जो कमेंट्स दिए गए थे, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स की जो आरा थी, और कमेटी के जो इजलास होते रहे इस मकाले के हवाले, फिर आपका वाइवा जो लिया गया, उसकी सारी रूदात, मैं क्या क्या आपको बताऊं, ये तमाम चीज़ें इस किताब में आपको मिलेंगी। इकबाल यूरोप में, डॉक्टर सईद अख्तर दुर्रानी की किताब, और इकबाल का आदमी लाहौर से ये दस्तयाब हो जाती है आजकल, वही इसे छाप रहे हैं। ये इनकी पहली किताब है। और दूसरी किताब भी ज़रा देख लें, नवादिर इकबाल यूरोप में, ये भी इसी सिलसिले की किताब है। अपनी तहकीक को डॉक्टर साहब ने जारी रखा, और बाद में जो चीज़ें वहाँ से दस्तयाब हुई हैं वो इस किताब में आपने शामिल कर दी। ये भी इकबाल अकादमी लाहौर से छपी है, नवादिर इकबाल यूरोप में। ज़रूर इसका, इन किताबों का मुताला करना चाहिए। आंखें इंसान की खुल जाती हैं कि ऐसे मुहक्किक भी होते हैं जो इतनी बारीक बीनी में जाते हैं कि इकबाल की जो रहायश गाहें थी वहाँ, उन तक भी पहुँचे हैं, और रहायश गाह का जो रजिस्टर था जिसमें इकबाल की आमद का इंदराज किया गया था, उसका अक्स भी इसके अंदर मिलता है। ज़्यादा मैं क्या बताऊं, आप खुद इस किताब को देखिएगा। नवादिर इकबाल यूरोप में, डॉक्टर सईद दुर्रानी और इकबाल अकादमी लाहौर से ये किताब छपी है। और चंद किताबों के सिर्फ मैं नाम लेता हूँ आपके सामने, नोट ज़रूर कर लें आप। डॉक्टर साबिर कलूरवी, इनका जिक्र भी हो चुका, उनकी किताब याद इकबाल, इकबाल की सवाने की एक अच्छी किताब है। 1977 में शाहकार बुक्स लाहौर से छपी थी। डॉक्टर साबिर कलूरवी की एक किताब याद इकबाल, शाहकार बुक्स लाहौर से ये 1977 में छपी। फिर मोहम्मद हनीफ शाहिद साहब का जिक्र मैंने अभी किया है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी एक और अहम किताब है इकबाल के सवाने पर, मुफक्किर इकबाल, मुफक्किर इकबाल, मोहम्मद हनीफ शाहिद, 1982, और संग मील पब्लिकेशंस लाहौर से छपी है ये किताब, संग मील पब्लिकेशंस लाहौर। एक और किताब SM नाज, हयात इकबाल, इनका जिक्र भी पहले हो चुका है इस किताब, एक किताब के हवाले से। इनकी किताब है हयात इकबाल, शेख गुलाम अली एंड सन्स लाहौर से ये किताब छपी है। और इसी तरह से एक किताब है इकबाल अकादमी लाहौर से 1977 में ये किताब भी छपी, सरगुज़िश्ते इकबाल। ये किताब है जनाब अब्दुल सलाम खुर्शीद साहब की। ये जो मैंने पिछली नशिस्त में आपको एक किताब लिखवाई थी ना, जिक्र इकबाल, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक, जो इकबाल के बहुत करीबी साथियों में और तहरीक पाकिस्तान के बहुत सरगर्म रुकन, और अखबार इनकलाब के भी और कुछ और अखबारात के भी एडिटर रहे, और सहाफ़त में बहुत अहम किरदार है उनका, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक। जिक्र इकबाल उनकी किताब थी, पिछली मरतबा मैंने इसका जिक्र किया था। ये उनके बेटे हैं अब्दुल सलाम खुर्शीद, इन्होंने 1977 में किताब लिखी थी, सरगुज़िश्ते इकबाल, इकबाल अकादमी लाहौर से छपी है। इनका भी चूँकि ताल्लुक इकबाल से इस लिहाज से बनता है कि इनके वालिद जो है वो इकबाल के करीबी दोस्त रहे हैं, और एक मुस्तनद किताब भी उनकी मौजूद है, लिहाजा इनकी किताब भी देखने के काबिल है। आखिर तक हम पहुंच रहे हैं। अब इंशाल्लाह 2-3 किताबों के बाद मैं सवालात लेने की कोशिश करूंगा आपकी। इकबाल की इब्तदाई जिंदगी, ये देखिए।
اقبال کی ابتدائی زندگی، ڈاکٹر سید سلطان محمود حسین، ان کی 2 کتابوں کا ذکر میں نے پچھلی مرتبہ بھی کیا تھا، وہ لیٹسٹ کتابیں ہیں ان کی، لیکن آج جو کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی باریکی میں جا کر بہت ہی اچھے طریقے سے اقبال کی ابتدائی زندگی جو ہے اس پر روشنی ڈالی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور اقبال اکادمی لاہور سے یہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اقبال کی ابتدائی زندگی، اس کتاب کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور یہ 1986 میں کتاب چھپی تھی لاہور سے، اقبال کی ابتدائی زندگی۔ اب دیکھیے ذرا کہ لوگوں نے کس قدر باریکی میں جا کر، ابھی میں یہ بات بار بار کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، لوگوں نے کام کیا ہے اور داد دینی پڑتی ہے، اور اقبال کی شخصیت کا بھی یہ کرشمہ ہے کہ ہمارے نالج کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اردو کے اندر، اردو میں انگریزی میں جو سب سے زیادہ کتابیں کسی شخصیت پر، اس کے سوانے پر اور افکار و خیالات پہ لکھی گئی ہیں وہ اقبال ہیں۔ دیکھیے اقبال کے آخری 2 سال، اقبال کے آخری 2 سال عاشق حسین بٹالوی کی کتاب ہے یہ، اور سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے چھپی ہے۔ آخری 2 سال بڑی باریکی سے اس میں دیکھے گئے ہیں، بڑے اہم ہیں۔ اقبال کے آخری 2 سال جو ہیں علمی اور قلمی مارکے بھی ہوئے اقبال کے اس میں، لہٰذا اس لحاظ سے بہت اہم کتاب ہے اور خاصی ضخیم کتاب ہے۔ صرف اقبال کی زندگی کے آخری 2 سالوں پر اچھا خاصا مواد اس میں ملتا ہے۔ اقبال کے آخری 2 سال، عاشق حسین بٹالوی، اور سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے سن 2000 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اب آخری کتاب جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، میں نے کوشش کی ہے کہ تمام اہم ماخذ اقبال کے سوانے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ اگر کوئی اہم ماخذ رہ گیا ہو تو ظاہر ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہر کسی کا ایک اپنا دائرہ کار ہوتا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو میری معلومات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ یہ کتاب دیکھیے ذرا، حیات اقبال کی گمشدہ کڑیاں، یعنی اقبال کی زندگی کا کوئی پہلو بھی ہمارے ماہرین اقبالیات، اقبال شناسوں نے، محققین نے رہنے نہیں دیا۔ بہت ہی اہم ہمارے اقبال شناس تھے، بہت ہی محنت کرنے والے محقق تھے، ماہر اقبالیات، محمد عبداللہ قریشی۔ محمد عبداللہ قریشی کی بہت اہم کتابیں ہیں اقبالیات پر، وہ ساری دیکھنی چاہیے، لیکن آج موضوع کے اندر رہتے ہوئے یہ کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، حیات اقبال کی گمشدہ کڑیاں۔ بہت ہی اہم پہلو حیات اقبال کے اس کتاب میں مولانا نے بیان کر دیے ہیں، اور بزم اقبال لاہور سے یہ کتاب 1982 میں چھپی تھی، حیات اقبال کی گمشدہ کڑیاں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اقبال کے ذہنی و فکری ارتقاء کو سمجھنے کے لیے، ان کے زمانے کو سمجھنے کے لیے اور ان کے سوانے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ترین ماخذ جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے آؤں۔ عزیز طلبہ و طالبات، نوجوانوں اور میرے اہل وطن، مطالعہ جو ہے وہ انسان کی اور انسانیت کی تکمیل کرتا ہے، اور کتاب جو ہے وہ انسان کی بہترین ساتھی ہے، اور کتابوں کے بغیر علم کسی طور حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے آج کل کے حالات میں، یہ اسی ضمن میں ہے کہ احباب کو، اہل قوم کو، اہل وطن کو علم کی طرف لے کر آئیں کہ علم روشنی ہے، یہ روشنی پھیلے گی تو یہ جہالت کے اندھیرے، یہ ظلم کے اندھیرے اور یہ جو مصیبت کا دور ہم پر آیا ہوا ہے، یقیناً یہ بھی چھٹ جائے گا اور ہر طرف نور اور روشنی پھیلے گی، اور ضرور انسانیت جو ہے وہ پھر اپنی معراج کو پہنچے گی۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا، کسی قسم کی غلطی کی پیش کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو یہ فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ صرف یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے اساتذہ جو ڈاکٹر ریاض صاحب مرحوم اور شاہین صاحب، ان کے بھی کوئی ہیں ان حوالوں سے
काम, वो तो बड़े अलग पाई के मुहक्किक थे अपने फील्ड में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलवाई है। असल में डॉक्टर रियाज जो हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबा इकबालियात के चेयरमैन रहे, और उनके पास एमफिल के दौर में और फिर पीएचडी के दौर में मेरे साथ आप भी जाया करते थे असाइनमेंट जमा करवाने के लिए। गालबन ये 1996 की 1996 से लेकर तकरीबन 2003-2004 तक की बात है कि आप हमारे साथ हुआ करते उससे थे। भी थोड़ा सा पहले की बात है। उससे थोड़ा पहले की बात। तो डॉक्टर रियाज ने ज़्यादातर अल्लामा इकबाल की फ़िक्र पे काम किया है। उनकी फ़िक्री किताबें बहुत सी हैं जिनका तज़किरा यकीनन आगे आएगा। अब तक चूँकि इकबाल के ज़माने और इकबाल की फ़िक्र पर मुश्तमिल, इकबाल के ज़माने पर मुश्तमिल ये किताबें थी जिनका ज़िक्र पिछले और इस आज के लेक्चर में मैंने किया। डॉक्टर रहीम बख्श शाहीन साहब की भी दो अहम किताबें हैं जिनको आप सवाहनी एतबार से भी गिन सकते हैं। औराक के गुमगुश्ता एक किताब है उनकी, बहुत अहम किताब है। असल में डॉक्टर साहब इकबाल के फन पर काम कर रहे थे और बहुत ही ज़ख़ीम और ज़बरदस्त किस्म का मंसूबा था उनका सवाहने की किताब लिखने का, लेकिन ज़िंदगी ने वफा नहीं की। लिहाजा उस दौरान में जो नादिर और नायाब चीज़ें उनके हाथ आई थी, उन्होंने वो किताब औराक के गुमगुश्ता में छाप दी थी और बड़ी अहम किताब है इकबालियात के ज़िमन में। लेकिन जो कि मुस्तकिल सवाहने के लिहाज से किताब नहीं थी, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। क्या अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह तसव्वुफ़ की नज़र हुआ है, और अगर हुआ है तो किसने किया है? क्या यूसुफ सलीम चिश्ती साहब का तर्जुमा कलाम इकबाल पर हुज्जत और मुस्तनद है? अच्छा, देखिए भाई, बात ये है कि तसव्वुफ का टच जिस शरह में पाया जाता है वो तो यकीनन मोहतरम यूसुफ सलीम चिश्ती साहिब की हैं। लेकिन आपके सवाल का जो ये हिस्सा है कि उनकी शरह मुस्तनद है, ये तो सवाल एक लिहाज से बनता नहीं है, क्योंकि किसी भी शरह को हम मुस्तनद कैसे कह सकते हैं कि वो हर किसी की अपनी राय होती है। ठीक है, शरह जो है हर कोई अपने जहन के मुताबिक करता है, तो उससे निकात हम ले सकते हैं, कलाम को ज़रूर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन उससे इख्तलाफात भी हो सकते हैं, और यकीनन बहुत से लोगों को यूसुफ सलीम चिश्ती साहब की शरों से इख्तलाफात भी हैं। लेकिन मेरे नज़दीक चूँकि यूसुफ सलीम चिश्ती साहब इकबाल के बहुत करीब रहे, इकबाल से उनकी गुफ्तगुएं होती रहीं, बहुत से कलाम को भी आपने इकबाल से समझा, लिहाजा मेरे ख्याल में कि उनकी शरहें जो हैं काफ़ी बेहतर हैं और इकबाल के कलाम की तफ़हीम में अहम किरदार अदा करती हैं। और तसव्वुफ़ के लिहाज से अगर आप कोई शरहें देखना चाहते हैं तो वो भी यूसुफ सलीम चिश्ती साहब ही की हैं यकीनन। जो आपने अभी बोला कि 1905 यानी 1905 में इंग्लिश डॉक्टर पेट्रियाटिज्म पे कि इकबाल की जो वतनियत कौमियत जो थी उस पे उन्होंने जितना भी कहा है, हमें थोड़ा सा अगर आप समझा सके, क्योंकि हम अभी पीजी स्टूडेंट्स हैं और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम आपसे समझना चाहते हैं। अगर हमें आगे भी फैज़याब होने का मौका मिलेगा तो हम होना चाहेंगे। अभी तो मुख्तसर तौर पे बयान करता हूँ, लेकिन फिर इस पर हम लेक्चर रख लेंगे इंशाल्लाह। अगर वतन की मोहब्बत और वतन की मिट्टी की खुशबू और वतनियत के जज्बात मिलते हैं, ठीक है, इस हवाले से अल्लामा इकबाल का 1905 तक का जो कलाम है बांगे दरा में वो शामिल है। उसका मुताला किया जाए, मसलन पहली ही नज़्म हमाला पढ़ें आप, फिर हिंदुस्तानी बच्चों का गीत ये पढ़ें, फिर तराने हिंदी, इसमें एक नज़्म है उसका मुताला करें, और उसके बाद नया शवाला, ये आप नज़्में अगर देखें तो इसमें वतन की गहरी मोहब्बत पाई जाती है। और वतन की मोहब्बत भी मेरे ख्याल में, कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं, वो जुग्राफियाई वतनियत जो है, यानी तफरीक नहीं करते आप हिंदू और मुसलमानों के अंदर।
कौमियत की तरफ थे। अल्लामा इकबाल भी और कायद आज़म भी, मौलाना मोहम्मद कलाम आज़ाद को आप जानती हैं उनका नाम, वो तो इस कदर हिंदी कौमियत की तरफ रागिब थे कि पाकिस्तान बनने के बाद वो वहीं रहे और वज़ीर तालीम भी रहे। इसी तरह से बड़े बड़े उलमा जो हैं वो इस हिंदुस्तान को जो है वो अपना वतन समझते हुए उससे मोहब्बत के दावेदार थे। और ये जुग्राफियाई वतनियत जो है, यानी वतन जो है वो इलाके से बनता है, जुग्राफियाई हदूद से बनता है, लिहाजा हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग हिंदुस्तानी कौम हैं। ये थी हिंदुस्तानी वतनियत। और कायद आज़म के साथ साथ अल्लामा इकबाल भी 1905 तक इसके दाई थे। और ये नज़में इस पर शाहिद हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अम्माला नज़म है बांगे दरा की पहली नज़म, और पहले हिस्से में हिंदुस्तानी बच्चों का गीत, तराने हिंदी और नया शवाला, ये नज़में आप देखें। इसमें जुग्राफियाई वतनियत, वतन की मोहब्बत, इत्तेहाद वतन और एक ही कौम होना हिंदुस्तान के बाशिंदों का, ये दिखाई देता है। लेकिन 1905 में जब आप यूरोप चले गए तो वहाँ अंग्रेज को आपने करीब से देखा और उनकी जो उनका जो इस्तिबदाद है, उनकी जो बादशाहत है जिसे वो पूरी दुनिया पर कायम रखना चाहते थे, आपने इसका मुताला किया कि ये जुग्राफियाई वतनियत जो है ये उनका फैलाया हुआ नारा है। और वो जुग्राफियाई वतनियत के जरिए पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान जो है उसके लिए जुग्राफियाई वतनियत जो है वो किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। आप देखें ना, उनका कहना ये है कि अहले मगरिब का कहना ये है, वो कौम की तारीफ भी ये करते हैं कि एक ही इलाके में रहने वाले, एक ही जुबान बोलने वाले या एक ही रंगो नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग एक कौम हैं। एक इलाके में रहने वाले लोग एक कौम हैं, एक तारीफ ये है उनकी। इसके तहत ही हिंदुस्तान के अंदर वो कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर एक ही कौम है। इस तारीफ के तहत जब एक इलाके में रहने वाले एक कौम है तो हिंदुस्तान में एक ही कौम है, और जब एक ही कौम है तो उन्हें तकसीम की कोई जरूरत नहीं है। ये नारा ले लिया था कांग्रेस ने, और साथ ही बेशुमार मुसलमानों ने भी और मुसलमान उलमा ने भी, और अल्लामा इकबाल ने भी 1905 तक यही नारा लगाया था, इत्तेहाद वतन, वतन की मोहब्बत का। खाके वतन का हर जर्रा मुझे देवता है, ये भी वो कहते हैं। खाके वतन के हर जर्रे को वो देवता समझते हैं। एक नज्म के अंदर ये उन्होंने, जिनका नाम मैंने लिया नज्मों का, उसमें यहाँ तक आप कहते हैं। और लेकिन ये है इकबाल का ज़हनी इर्तिका कि जब 1905 में आप यूरोप चले गए तो आपने देख लिया कि ये वतनियत जो है, जुग्राफियाई वतनियत, यूरोप वाले जो तारीफ करते हैं कौम की और वतनियत की, यानी एक ही इलाके में रहने वाले तमाम लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी रंगो नस्ल, वो एक कौम है। तो आपने देखा कि ये नजरिया तो इंतहाई खतरनाक है, इससे तो मुसलमानों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा आपने बाद में ये चीज़ें लिखी और ये फरमाया कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। फिर सुनिए ये शेर, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। और इसी तरह से आपने ये फरमाया कि गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है, और गुफ्तार नबूवत में वतन और ही कुछ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वतन की कुछ और तारीफ करते हैं, लेकिन सियासत के अंदर वतन की और तारीफ होती है कि एक ही इलाके में रहने वाले एक कौम कहलाते हैं और उस वतन से ही पक्की अटैचमेंट होनी चाहिए। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके ये दिखा दिया कि आबाई वतन जो है उसके साथ हमारा ताल्लुक जो है वो मजहब से ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। पहले नंबर पर अल्लाह का हुक्म है और हमारा दीन है। अल्लाह ने हुक्म दिया वतन को छोड़ने का, आपने वतन को छोड़ दिया और
मदीना मुनव्वरा में आप आ गए, हिजरत मदीना हो गई। ये हिजरत को आप, अल्लामा इकबाल जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहते हैं, और हमें भी ये सुन्नत अदा करने की तरफ आप लेकर आए। तो आपने अंग्रेज के, हिंदुओं के, कांग्रेस के इन तमाम ख्यालात को भांप लिया कि जुग्राफियाई वतनियत जो अंग्रेज तारीफ करते हैं वतन की और कौमियत की, उसके तहत ये हमेशा के लिए मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहते हैं और तकसीम को ख़त्म करवाना चाहते हैं। लिहाजा शद्दो मद से आपने इस नज़रिए कौमियत की और इस वतनियत की मुखालफत शुरू कर दी, और 1908 में जब हिंदुस्तान लौटे आप, तो यकसर आपके ख्यालात बदल चुके थे, और अब आपके तराने का उन्वान जो है वो तराना हिंदी नहीं रहा बल्कि तराने मिली बन चुका है। यानी हिंदुस्तानी कौमियत से मुस्लिम कौमियत तक का सफ़र आपने इन 3 सालों में तय कर लिया, और अब आप फरमाते हैं मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। यानी आपने ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर हम जो रह रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक जो है वो दीन को, अपने मजहब को, अल्लाह को, रसूल को फरामोश कर नहीं हो सकता। पहले नंबर पर हमारी मिल्लत है, पहले नंबर पर हमारा दीन है, और उसके बाद वतन आता है। अब सवाल ये रह जाता है कि फिर आपने एक अलग वतन की तजवीज़ क्यों पेश की। तो ये मैं अर्ज कर दूं कि ये वतन की तजवीज़ जो आपने पेश की है, ये जाहिर है कि अपने मिली जज्बात के लिए और अपने मिली जज्बात की तस्कीन के लिए, मुसलमानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तान में बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों का एक अपना तशख्खुस बरकरार रखने के लिए आपने ये वतन की तजवीज़ पेश की है। वरना क़याम पाकिस्तान के बाद अगर आप जिंदा फिर मिल्लत को छोड़कर वतन के साथ ऐसी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि मिल्लत, हमारी कौमियत, हमारा दीन पीछे चला जाए। लिहाजा बेशुमार अशार आपके ऐसे हैं जिसमें बार बार आप ये कहते हैं कि बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना ईरानी रहे बाकी, न तूरानी न अफगानी। और इसी तरह से दरवेश खुदा मस्त न शर्की है न गरबी, घर उसका न दिल्ली न सफ़हा न समरकंद। ऐसे बेशुमार अशार हैं। आप ये कहते हैं कि पहले नंबर पर मिल्लत, पहले नंबर पर मजहब, और उसके बाद फिर वतन आना चाहिए। वतन को मिल्लत के इत्तेहाद में और रकावट नहीं बनना चाहिए। इसीलिए आप फरमाते हैं बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी, न तूरानी न अफगानी। तो मुझे उम्मीद है कि हिंदी वतनियत या हिंदी कौमियत से मुस्लिम कौमियत तक, मुस्लिम वतनियत तक के सफ़र जो इकबाल ने किया है, जहन में जो इर्तिका उनके इर्तिका पजीर रहा है और जो इर्तिका हुआ उनके जहन में, मुख्तसर तौर पर इसे समझाने में मैं कामयाब हो गया हूँगा। इंशाअल्लाह आगे इस पर हम लेक्चर रख लेंगे अगर आप चाहेंगी। तो कोशिश मैंने की है कि मुख्तसर तौर पे आपको समझा सकूं। इकबाल पर मौज़ूआत के एतबार से अगर कोई किताब है तो उसकी वो बयान कर दीजिए। मौज़ूआते इकबाल के लिहाज से एक किताब है कमर अब्बास की, कमर अब्बास की किताब है। गालिबन मौज़ूआते फ़िक्रे इकबाल उसका नाम है, बाहवाला कुतुब, यानी किताबों के अंदर इकबाल के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो मज़ामीन आए हैं, उन किताबों के हवाले और सफ़ा नंबर इस किताब में दे दिए गए हैं। MA का मकाला था ये कमर अब्बास साहिब का, आजकल प्रोफेसर हैं गालिबन ये भक्कर में, गालिबन प्रोफेसर हैं, PhD भी बल्कि अब कर ली है, डॉक्टर कमर अब्बास। लेकिन किताब पर सिर्फ कमर अब्बास ही लिखा हुआ है। तो मौज़ूआते इकबाल का इशारिया, गालिबन ये इसका नाम है। इकबाल अकादमी लाहौर से चली है, कमर अब्बास की किताब है, बहुत मुफीद है। इकबाल के किसी भी मौजू पर मज़मून देखने हो कि कौन कौन सी किताब में मिलते हैं, वो इस इशारिये में आपको मिल सकते हैं। कि जी मैंने भी इकबाल का थोड़ा सा मुताला किया है, लेकिन खुद ही के हवाले से मुझे बोल दीजिए कि सर मैं कौन सी किताब
डॉक्टर रियाज इंशाल्लाह इकबाल की फिक्र के हवाले से कुतुब का और मज़ामीन का मुताला अगले लेक्चर्स में मैंने करना है, लेकिन बहरहाल फिर भी आपने ये पूछा कि इकबाल के तसव्वुर खुदी के हवाले से किसी किताब का बताया जाए, तो सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त और इल्मी किताब जिसे समझा जाता है पाकिस्तान में इकबालियात के अंदर तसव्वुर खुदी पर, वो डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन की किताब है हिकमत इकबाल। ये नोट कर लें अपने पास, हिकमत इकबाल किताब है डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की, और ये इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से छपी हुई है। और आपको अगर वहाँ दस्तयाब नहीं होगी तो इंशाअल्लाह बस्मे फ़िक्र इकबाल पाकिस्तान रावलपिंडी मरकज इसकी कोशिश करेगा कि आपको ये किताब पहुंचाई जाए। एक और है डॉक्टर आसिफ जाह कारवानी, डॉक्टर आसिफ जाह कारवानी, इनकी किताब का नाम ही ये है इकबाल का ज़रिए खुदी। ये किताब मुझे अब ये याद नहीं है सरे दस्त के किस अदारे से छपी हुई है। और एक और हमारे बहुत मारूफ इकबाल शनास हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है, इनकी किताब का नाम ही ये है इकबाल का नजरिया खुदी, और बड़ी ज़ख़ीम किताब है और हर पहलू से इसमें इकबाल के नजरिए खुदी पर बात की गई है। इकबाल अकादमी लाहौर से ये किताब छपी हुई है, इकबाल का नजरिए खुदी, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब। दूसरी एक किताब मैंने इकबाल का तसव्वुर खुदी या इकबाल का नजरिया इल्मी अंदाज में और डॉक्टर रफ़ीउद्दीन की किताब है हिकमत इकबाल, जो इस्लामाबाद से छपी है। ये याद रहे कि डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी ये लाहौर के हैं, जिनकी इकबाल की तवील नज़्में और किताबियात इकबाल और तसानीफ़ इकबाल का तहकीक तोज़ीह मुतालिया ये किताबें हैं, वो अलग हैं। ये डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन अलग थे, बहुत बड़े आलिम थे, इनकी किताब है हिकमत इकबाल। तो ये तीन किताबें सरे दस्त मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। तमाम शुरका का जिन्होंने हमें कश्मीर से इंडिया से ज्वाइन किया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, और डॉक्टर साजिद काज़मी साहब का जिन्होंने हमें बरतानिया से ज्वाइन किया, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त हमें दिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।